دین آسان عالم آن لائن میں آپ کا میزبان محمد اشتیاق حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک میں کرنے والے مخصوص اعمال، ان میں سے آج 5واں عمل دعا ہے۔ عزیز سامعین، دعا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کو اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، انتہائی غم زدہ اور محزون ہوتا ہے اور دنیا کے تمام سہارے اس کے سامنے مایوسی کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان ایک واحد اور آخری سہارا دعا کی صورت میں اس سے قرار پاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا آپ کے رب نے کہ ہمیں پکارو، ہم تمہاری پکار کو سننے والے ہیں اور شرف قبولیت سے نوازنے والے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو ہماری اس عبادت سے تکبر کرنے والے ہیں، یعنی کہ دعا نہیں کرتے، تو یہ ان کے تکبر کی اور غرور کی علامت ہے، ان کی نشانی ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، تو خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ اور اگر آپ قرآن مجید کا دوسرا مقام اٹھائیے تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب ہمارے بندے اے نبی ہمارے بارے میں پوچھیں کہ ہم کدھر ہیں، ہم کہاں ملیں گے، تو بتائیے کہ میں بہت قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، پکارنے والا جب ہاتھ اٹھا کے مجھے پکار رہا ہے یا اپنے دل ہی دل میں مجھے پکار رہا ہے، میں اس کی پکار کو سن رہا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس صرف مجھے پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی مشکلات میں، مصیبتوں میں، آلام میں، تکلیفوں میں، امراض میں، وباؤں میں صرف مجھے پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر کامل ایمان رکھیں کہ ساری مصیبتیں دور کرنے والا، ساری مشکلات دور کرنے والا اور ساری حاجات کو بر لانے والا اور ساری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازنے والا میں اللہ ہوں۔ لعلہم یرشدون، پھر ممکن ہے کہ تم بھلائی کو بھی پہنچ جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ قرآن مجید کا حاضرین تیسرا مقام، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں کیسے وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو انسان اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیں، پختہ طور پہ بٹھا لیں کہ میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 میں کہ میں قریب ہوں، تو سورہ قاف آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ اپنی اسی بات کی وضاحت الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ میں تو ان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان بے چین، بے قرار اور مضطرب ہوتا ہے، تو پھر وہ فوراً اللہ سے رابطہ کر لے، اپنے اللہ کو پکارے، اپنے خالق و مالک سے اپنا تعلق
को रश्ता जोड़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी पुकार को सुनते हैं और पूरा करने की सलाहियत भी रखते हैं। अज़ीज़ सामीन, कुरान मजीद का चौथा मुकाम, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो। अब यहाँ अल्लाह ने लफ्ज़ नास इस्तेमाल करके तो खुलेआम इंसानों को दावत दी है, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। अब इस इंसान में अंबिया भी मौजूद हैं, औलिया अल्लाह भी मौजूद है, शुहदा भी मौजूद हैं, अस्दिका भी मौजूद हैं, सखी भी मौजूद हैं, फयाज भी मौजूद हैं, हज उम्रा करने वाले भी मौजूद हैं, सोमो सलात के पाबंद भी मौजूद हैं, जिहाद और हिजरत करने वाले भी मौजूद हैं, अल्लाह के सामने झुकने वाले भी मौजूद हैं, नेको बर, फासिक, फाजिर, काफिर, मुनाफिक, मुशरिक सारे मौजूद हैं। बड़े बड़े रईस, बादशाह, शहनशाह, गदागर, फकीर, साइल, मोहताज, इसमें सारे मौजूद हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सारे अल्लाह के दर के फकीर हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह वो है जो शहनशाह है, जो बादशाह है, जो सारी कायनात को नवाजने वाला है, जो दाता है, जो गंज शकर है, जो सारी कायनात के ऊपर अपनी नेमतों की बरसात करने वाला है। सूरा फातिर आयत नंबर 15, कुरान मजीद का 5वां मुकाम, अम्मै युजीबुल मुस्तर। अब सवालिया अंदाज में खालिक़े कायनात हजरत इंसान से पूछ रहे हैं, अम्मै युजीबुल मुस्तर, ऐ लोगों मुझे बताओ, दुआओं को बर लाने वाला, दुआओं को पूरा करने वाला, हाजात पूरी करने वाला, इंसान की ख्वाहिशात और आरज़ुओं तमन्नाओं को पूरा करने वाला कौन है? इज़ा दआहु, जब इंसान रब को पुकार रहा है तो फिर बताएं कौन है? अल्लाह पूछ रहे हैं। वयक्शिफुस्सू, और दूसरी बात, पहली बात दुआएं कबूल करने वाला कौन है? वयक्शिफुस्सू, और मुसीबतों को दूर करने वाला, अमराज बीमारियों को खत्म करने वाला, वबाओं से निकालने वाला, मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करने वाला कौन है? वयजअल लकुम खुलफा फिल अर्ज़, और फरमाया कि बताओ तुम्हें इस जमीन का जानशीन बनाने वाला कौन है? अइलाहुम मअल्लाह, क्या मेरे अलावा कोई और भी इलाह है? क्या मेरे अलावा कोई और भी खालिक है? क्या मेरे अलावा कोई और भी मालिक है? क्या मेरे अलावा कोई और भी ज़मीन और आसमान के निज़ाम को चलाने वाला है? मेरे अलावा कोई और है दुआओं को पूरा करने वाला, मुश्किलात को ख़त्म करने वाला और ज़मीन और आसमान के निज़ाम को पैदा करने वाला? क़लीलन मा तज़क्करून। लेकिन इन सारी बातों को बयान करने के बाद खालिक़े कायनात फरमा रहे हैं, बड़े थोड़े लोग हैं जो इन सारी बातों से इबरत पकड़ने वाले हैं और नसीहत हासिल करने वाले हैं। सूरा नमल आयत नंबर 63। और कुरान मजीद का छठा मुकाम, खालिक़े कायनात फरमा रहे हैं, लैसा शैउन, मुस्नद अहमद की हदीस मुबारका है, लैसा शैउन अकरम अलल्लाह सुब्हानहु मिनद दुआ। अल्लाह के यहाँ सबसे बरगुज़ीदा अमल, अल्लाह के यहाँ सबसे अच्छा और बेहतरीन अमल जो है वो दुआ है, इससे बेहतर अमल नहीं हो सकता। मुस्नद अहमद की हदीस। तो हज़रत जी वकार कुरान मजीद के ये सारे मुकामात हमें ये बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो दुआ करते हैं, अल्लाह को जो पुकार रहे हैं, वो तकब्बुर व गुरूर इस बीमारी से निकल रहे हैं। उनके अंदर आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ु आ रहा है, उनके अंदर रब के सामने झुकना आ रहा है, और ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा पसंद है। और फिर ख़ास तौर पे हालत रोज़ा में अगर हो, नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, सलासु दअवातिन ला तुरद, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाते। पहली दुआतुल वालिद लिवलदिही, फरमाया वालिद की दुआ औलाद के लिए, यानी औलाद ने अपने बाप की खिदमत की, उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा और उनकी खिदमत करके, उनकी ताबेदारी फरमा बरदारी करके
उनसे दुआएं ली तो वो दुआ सीधा अर्श इलाही तक जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को शर्फ़ कबूलियत से नवाजते हैं। व दुआतुल मुसाफिरी, और मुसाफिर जब सफ़र पे निकलता है और उस सफ़र में अल्लाह को याद कर रहा होता है, अल्लाह को पुकार रहा होता है, रब की नाफरमानी नहीं करता, अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, गैर महरमों की तरफ नजरें नहीं दौड़ाता और अपने उस सफ़र के अंदर बेहुदा गाने नहीं सुनता, बेहुदा गाने नहीं सुनता, बेहुदा ड्रामे फिल्में नहीं देखता, बल्कि वो अल्लाह के सामने दुआएं कर रहा है कि अल्लाह इस सफ़र में तेरे हबीब ने फरमाया है कि अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है, अल्लाह मेरी फ़लाँ मुश्किल है उसको हल कर दे, अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत है उसको पूरा कर दे, अल्लाह मेरी फ़लाँ मुसीबत को रफ़ा कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुसाफिर की दुआ को भी कबूल करते हैं। और तीसरा दुआ तो साइम, फरमान रोज़ादार की दुआ। और अगली हदीस मुबारका में नबी इस्लाम के अल्फाज़ गिरामी हैं, इन्ना लिस्साइम इंदा फित्रिही लदावतुन मा तुरद, रोज़ादार के लिए अफ्तारी के वक़्त में बेहतरीन वक्त है दुआओं के कबूल होने का। हाज़रीन, अक्सर मेरी माएँ बहनें या मेरे दोस्त अहबाब मुझे ये सवाल करते हैं कि हज़रत हमें बताइए कि कौन सा ऐसा वक्त है जब दुआएं कबूल होती हैं। तो नोट कर लीजिए कि रोज़े की हालत में और ख़ास तौर पे अफ्तारी के जो करीब के लम्हात हैं, जब इंसान को भूख प्यास शिद्दत के साथ तंग कर रही है, लेकिन वो इंसान जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, ईमानन व इह्तिसाबन, अल्लाह को खुश करने के लिए और अल्लाह की रज़ा को पा लेने के लिए इखलास में अपनी रोज़ा रखा और अफ्तारी के करीब जाके वो हाथों को उठा के अल्लाह के सामने जब अपनी हाजात पेश करता है, अल्लाह के सामने जब अपनी ख्वाहिशात पेश करता है, अल्लाह के सामने जब अपनी मुश्किलात को रखता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिक़े कायनात को ये अमल रोज़े के अंदर दुआ करना इतना पसंद आता है, इतना अच्छा लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला वो दुआएं जो मांगी हैं उनको भी पूरा कर देते हैं और जो हम नहीं मांग सके होते अल्लाह तबारक व तआला इस अमल से वो भी कबूल कर लेते हैं। तो लिहाजा अजीज सामीन और हाज़रीन, रोज़े में करने वाले अमाल में से बेहतरीन अमल ये है कि आप अपने वक्त को ज़ाया न करें, बल्कि इसकी घड़ियों से भरपूर तौर पे फ़ायदा उठाएं और खालिक़े कायनात के सामने अपने हाथों को दराज करके अपनी सारी हाजात पूरे यकीन के साथ कि मेरा अल्लाह सारे काम करने वाला है, वो सारी मुश्किलात को ख़त्म करने की हिम्मत ताकत सकत रखने वाला है, वो बीमारियों को शिफा में बदलने वाला है, वो वबाओं को ख़त्म करने वाला है, वो अजाबों को टालने वाला है, वो हर मुश्किल को हल करने वाला है। पूरे यकीन के साथ अपने खालिक को पुकारे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले अमल के साथ अपने आइंदा के प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।